Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. How are all of you? I hope all of you are enjoying and safe at home. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as Shasta. In our last video, our topic was adjectives. So we have read adjective and type of adjective, and we have also solved exercise B of chapter 3 Black Beauty, which is in your page number 26 in our English literature book as Shasta in our last video. And students, we have also completed exercise O of chapter 3 in our Fair English Literature notebook in our last video. So we have completed exercise O and exercise P, and we have read types of adjective and definition of adjective in our last video. And today's our topic is exercise B. Answer these questions of chapter 3 Black Beauty. So student, today firstly we shall read and solve exercise B. Answer these questions of chapter 3 Black Beauty in our Fair English Literature notebook in our today's class. And after it, students, all of you remember that I gave you homework yesterday to complete this exercise A of chapter 2nd when Frankenstein was just a kid in English literature book as well. So students, I hope that you have completed your work. Okay, all of you completed your this exercise. Okay, to student, firstly we shall read and solve this exercise B of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook, and after it we shall match our homework in our today's class. Okay, so student, all students with special attention in your class and listen to my words clearly. Now we are going to solve this exercise B in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see. Your exercise B is answer these questions. Answer means उत्तर दीजिए. These means ये questions means प्रश्नों के. Answer these questions. It's mean इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is, why is the narrator proud and happy about leaving at Birtwick Hall? Why means क्यों. It means है narrator. Strength the mean of narrator is storyteller. Okay, story कहने वाला, story telling करने वाले को बोलते हैं narrator. Okay, understand, we have read that in this chapter, chapter 3 Black Beauty, the narrator is Black Beauty Horse. Okay, because ये जो स्टोरी है ना ब्लैक ब्यूटी, ये ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ने अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है स्टोरी में. और ये जो स्टोरी है ब्लैक ब्यूटी, ये ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ने ही डिस्क्राइब की, उसी ने कही है. तो हियर इन दिस चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी द नरेटर इज ब्लैक ब्यूटी हॉर्स. ओके, जो नरेटर है ना, स्टोरी टेलर है ना, वो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ही है. ओके, तो वाई मीन्स क्यू, इट मीन्स है the mean of narrator that black beauty horse. Okay, proud means अभिमान, and means और happy means खुशी, about means बारे में, living at means रहने के Birtwick Hall. Okay, why is a narrator proud and happy about living at Birtwick Hall? The mean of your first number question is that कि ब्लैक ब्यूटी हॉर्स को अभिमान और खुशी क्यों है बिल्टविक हॉल में रहने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द नरेटर वाज प्राउड एंड हैप्पी अबाउट लिविंग एट बिल्टविक हॉल because his master and mistress were respected and beloved by all the people whom they knew. Their behavior were good and kind to everyone and everything, not only to human beings but to animal too. Okay, the narrator means storyteller करने वाला, and in this chapter 3 Black Beauty, our narrator is Black Beauty Horse. Okay, तो जो Black Beauty Horse है ना, वाज मीन्स था, प्राउड मीन्स अभिमान, एंड मीन्स और हैप्पी मीन्स खुशी, अबाउट मीन्स बारे में, लिविंग एट मीन्स रहने के बिल्टविक हॉल मीन्स बिल्टविक हॉल में. द नरेटर वाज प्राउड एंड हैप्पी अबाउट लिविंग एट बिल्टविक हॉल. इट्स मीन कि ब्लैक ब्यूटी हॉर्स को अभिमान और खुशी बिल्टविक हॉल में रहने के लिए इसलिए थी, बिकॉज मीन्स कि उसकी हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स मालिक, एंड मीन्स और मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन. ओके, मालकिन वर मीन्स थे, रिस्पेक्टेड मीन्स सम्माननीय, एंड मीन्स और बिलव्ड मीन्स प्यार किए जाने वाले, एंड बाई मीन्स द्वारा, ऑल दी पीपल मीन्स सभी लोगों के. ओके, होम मीन्स जो, दे मीन्स वे, नो मीन्स जानते थे. ओके, तो द नरेटर वाज प्राउड एंड हैप्पी अबाउट लिविंग एट बिल्टविक हॉल बिकॉज हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड बाय ऑल दी पीपल होम दे न्यू. ओके, तो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स को खुशी और अभिमान बिल्टविक हॉल में रहने के लिए इसलिए था क्योंकि उसके जो मालिक और मालकिन थे ना, मास्टर और मिस्ट्रेस थे ना, वो जितने लोगों को वो जानते थे, वो सारे लोग, जितने लोगों को वो जानते थे, वो सारे लोग बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनके मास्टर और मिस्ट्रेस की, और उनसे बहुत प्यार करते थे. ओके, तो मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड बाय ऑल दी पीपल होम दे न्यू. ओके, तो जितने लोगों को इनके मास्टर और मिस्ट्रेस जानते थे, या जितने लोग इनके मास्टर और मिस्ट्रेस को जानते थे, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के मास्टर और मिस्ट्रेस को, वो लोग, मतलब जितने भी सारे लोग थे, वो इनके मास्टर और मिस्ट्रेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. दियर बिहेवियर वर गुड एंड काइंड टू एवरी वन एंड एवरीथिंग. दियर मीन्स उनका, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, वन मीन्स था. ओके, गुड मीन्स अच्छा, एंड मीन्स और, काइंड मीन्स दयालु, टू एवरी वन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एंड मीन्स और
एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु के लिए. दियर बिहेवियर वर गुड एंड काइंड टू एवरीवन एंड एवरीथिंग. तो इनके जो मास्टर और मिस्ट्रेस थे ना, मालिक और मालकिन थे ना ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के, तो इनके मास्टर और मिस्ट्रेस का बिहेवियर जो था, इनका बिहेवियर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के लिए बहुत ही अच्छा और दयालु था. ओके, नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट टू एनिमल्स टू. ओके, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं. ओके, नॉट मीन्स नहीं ओनली मीन्स केवल टू ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसानों के लिए. ओके, मानवों के लिए, बट लेकिन टू एनिमल्स मीन्स जानवरों. TOO2 मीन्स होता है कि बहुत. ओके, नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट टू एनिमल्स टू. ओके, इट्स मीन कि सिर्फ इंसानों के लिए इनका बिहेवियर नहीं था अच्छा, बल्कि जानवरों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा था. ओके, तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था. क्लियर? तो student, your first number answer is the narrator was proud and happy about living at Britwick Hall because his master and mistress were respected and beloved by all the people whom they know. Their behavior were good and kind to everyone and everything, not only to human beings but to animals too. It's mean ब्लैक ब्यूटी हॉर्स को अभिमान और खुशी ब्रिटविक हॉल में रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि इसके मालिक और मालकिन को जितने लोग जानते थे ना, वही सभी लोग उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे. और उनका बिहेवियर, इनके मास्टर और मिस्ट्रेस का, इनके मालिक और मालकिन का जो बिहेवियर था, वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही अच्छा और दयालु था. वो सिर्फ इंसानों से ही नहीं प्यार करते, तो उनका बिहेवियर सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं अच्छा था, बल्कि जानवरों के साथ भी बहुत ही अच्छा था. ओके, तो स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. The second number question is, why did the master and mistress want to make the lives of animals better? How did they achieve it? Okay, why means Q. Did the master, okay, master means Malik and miss और mistress means assistant मालकिन, want means चाहते थे, to make means बनाना, the lives means जीवन, of means का, animals. Okay, ANIMALS है, animals means assistant जानवरों का. Okay, better means अच्छा, better means होता है अच्छा, पहले से अच्छा. Okay, it's a comparative degree. Okay, comparative degree है good की. Okay, so student, the meaning of this question is that why did the master and mistress want to make the lives of animals better? कि मालिक और मालकिन जानवरों के जीवन को अच्छा क्यों बनाना चाहते थे. हाउ डिड दे अचीव इट? हाउ मीन्स कैसे. डिड इट्स अ पास्ट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब. दे मीन्स वे, अचीव मीन्स प्राप्त करना. इट मीन्स हाउ डिड दे अचीव इट. ओके, और वे ये कैसे प्राप्त कर सकते थे. द मीन ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, वाई डिड द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वांट टू मेक द लिव्स ऑफ एनिमल्स बेटर. हाउ डिड दे अचीव इट. इट मीन कि मालिक और मालकिन जानवरों के जीवन को अच्छा क्यों बनाने चाहते थे और वे ये कैसे प्राप्त कर सकते थे. ओके, ये वे कैसे प्राप्त कर सकते थे, कैसे जानवरों के जीवन को अच्छा बना सकते थे. क्लियर? योर सेकंड आंसर इज, द मास्टर एंड मिस्ट्रेस बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल. ओके, तो जो मास्टर और मिस्ट्रेस है वो बिलीव करते थे एनिमल के साथ वेल ट्रीटिंग करने में. ओके, द मास्टर एंड मिस्ट्रेस बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल. According to them, animals are living creatures and must be treated equally as human beings. They achieved it by making them free from chagrins and showing their love towards them. Okay, तो स्टूडेंट, जो मास्टर मिस मालिक एंड मिस और मिस्ट्रेस मिस मालकिन, बिलीव्ड मीन्स विश्वास करते थे. बिलीव इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ बिलीव. ओके, बिलीव मीन्स विश्वास करना, बिलीव्ड मीन्स विश्वास करते थे. ओके, इन मीन्स में ट्रीटिंग मीन्स व्यवहार करने में, एनिमल्स मीन्स जानवरों के साथ. ओके, वेल मीन्स अच्छा. द मास्टर एंड मिस्ट्रेस बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल. मालिक और मालकिन जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में विश्वास रखते थे. उन्हें लगता था कि हमें जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार. ओके, एनिमल्स मीन्स जानवरों, आर मीन्स है लिविंग क्रिएचर मीन्स, लिविंग मीन्स होता है सजीव. ओके, जिसमें जीव होता है, जिसमें जीवन होता है, उसे बोलते हैं लिविंग, सजीव. क्रिएचर मीन्स स्टूडेंट जीव. ओके, एंड मीन्स और, मस्ट बी मीन्स चाहिए, ट्रीटेड मीन्स बिहेवियर करना, उनके साथ व्यवहार करना, इक्वली मीन्स समान, एज मीन्स जैसे, ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसानों के. ओके, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर. ओके, एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर्स एंड मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एज ह्यूमन बींग. इट्स मीन कि उनके अनुसार जो एनिमल्स है, जानवर है, वो लिविंग क्रिएचर्स है. इट्स मीन सजीव जीव है और उनके साथ इंसानों के जैसे व्यवहार करना चाहिए. ओके, इंसानों के बराबर व्यवहार करना चाहिए. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के साथ बिहेवियर करते हैं ना, इंसानों के साथ बिहेवियर करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं ना, वैसे ही जैसे हम इंसानों के साथ बिहेवियर करते हैं, हमारा जो एनिमल्स के साथ बिहेवियर है ना, वो भी सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ही होना चाहिए. तो इनके मास्टर मिस्ट्रेस चाहते थे कि जो एनिमल्स हैं वो लिविंग क्रिएचर हैं, सजीव जीव है, और उनके साथ इंसानों के बराबर ही, इंसानों के समान ही व्यवहार होना चाहिए. ओके,
दे अचीव्ड इट, और वे प्राप्त कर सकते हैं ये बाय मीन्स द्वारा, मेकिंग दैम मीन्स उन्हें बनाकर फ्री, ओके, इट्स मीन्स स्वतंत्र, फ्रॉम मीन्स से चैक्रिन्स मीन्स लगाम, ओके, एंड मीन्स और शोइंग दियर लव टूवर्ड्स दैम, ओके, शोइंग दियर लव टूवर्ड्स दैम, इट्स मीन कि उनके प्रति अपना प्यार दिखाकर, ओके, दे अचीव्ड इट बाय मेकिंग दैम फ्री फ्रॉम चैक्रिन्स एंड शोइंग दियर लव टूवर्ड्स दैम, इट्स मीन वे इसे प्राप्त कर सकते हैं उन्हें स्वतंत्र करके, उन्हें लगाम से, जो चैक्रिन्स लगाई जाती है हॉर्सेस पे, एनिमल्स पे, तो उन्हें वो चैक्रिन से, उस लगाम से स्वतंत्र करके, उससे आज़ाद करके और उनके प्रति अपने प्यार को दिखाकर वे ये प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, योर सेकेंड नंबर आंसर इज द मास्टर एंड मिस्ट्रेस बिलीव इन ट्रीटिंग एनिमल्स वेल, अकॉर्डिंग टू देम एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर्स एंड मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एज ह्यूमन बींग्स, they achieved it by making them free from chakrins and showing their love towards them, okay। तो मालिक और मालकिन एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में विश्वास रखते थे, और उनके अनुसार जो जानवर हैं वो लिविंग क्रिएचर्स हैं, सजीव जीव है, और उनके साथ इंसानों के समान ही, इंसानों के बराबर ही व्यवहार होना चाहिए, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के साथ बिहेव करते हैं, इंसानों के साथ बिहेव करते हैं, सेम वैसा बिहेवियर हमें एनिमल्स के साथ भी होना चाहिए हमारा। एंड वो, और हम ये कैसे कर सकते, ओके, वे कैसे प्राप्त कर सकते थे, कैसे मतलब एनिमल्स के लीव्स को बेटर कर सकते थे, उनके जीवन को सुधार सकते थे, कैसे प्राप्त कर सकते थे, ओके। तो दे अचीव्ड इट, वे प्राप्त कर सकते थे बाय मेकिंग द फ्री फ्रॉम चैक्रिन्स, ओके। तो इट्स मीन कि वे ये लगाम से उनको स्वतंत्र करके, उनको आज़ाद करके, और उनके प्रति अपनी व्यवहार, उनके प्रति अपनी प्यार को दिखा के, अपने प्यार को प्रदर्शित करके वे ये प्राप्त कर सकते थे, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आई रियली इनसे मैं उनकी बात को स्वीकार करती हूँ कि हाँ, सच में हमें एनिमल्स के साथ ना सच में अच्छा बिहेव करना चाहिए, ओके, उन पर चैक्रिन्स नहीं लगाना चाहिए, और हमें सच में इक्वली व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के साथ करते हैं, वैसे ही सेम ट्रीट हमें एनिमल्स के साथ भी करना चाहिए, ओके। कॉमन रिपाइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट वाज अ ग्रीटफुल साइट फॉर द नरेटर। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, मीन्स एक, ग्रीटफुल मीन्स स्टेट डरावना, साइट मीन्स डस्ट, फॉर द narrator means storyteller, and here the meaning of narrator, we're going to say that in this chapter 3 Black Beauty, our narrator is Black Beauty horse, okay। तो what was a dreadful sight for the narrator, okay। तो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के लिए एक डरावना दृश्य क्या था, ओके। तो इंस्टेंस योर थर्ड नंबर आंसर इज वंस व्हेन द नरेटर वाज राइडिंग विद इट्स मास्टर, इट सा अ मैन turning a pony's head with such a great force that it nearly fell. Then he started beating it furiously, which was a dreadful sight for the narrator, okay। वंस मीन्स एक बार, व्हेन मीन्स जब, द नरेटर मीन्स जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स है ना वो, वाज मीन्स था, राइडिंग मीन्स सवारी करना, घुड़सवारी करना, विथ मीन्स साथ में, इट्स मास्टर मीन्स अपने मास्टर के। वंस व्हेन द नरेटर वाज राइडिंग विथ इट्स मास्टर, इट्स मीन कि एक बार जब उनके मास्टर ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के साथ घुड़सवारी करके जा रहे थे ना, ओके, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स पर घुड़सवारी करके जा रहे थे, इट्स अ मैन टर्निंग अ पॉनीज हेड, ओके। तो वंस व्हेन द नरेटर वाज राइडिंग विद इट्स मास्टर, इट्स मीन कि जब एक बार ब्लैक ब्यूटी हॉर्स अपने मालिक के साथ राइडिंग करते हुए जा रहा था, ओके, सवारी करते हुए जा रहा था, तो इट्स अ मैन, ओके। तो उसने एक मैन को देखा, सा द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी मीन्स होते देखना, सा मीन्स देखा, ओके। तो उसने एक मैन को देखा, एक आदमी को देखा, टर्निंग अ पोनीज हेड, ओके। टर्निंग मीन्स होता है मोड़ना, ओके। पोनीज हेड को, पोनीज मीन्स स्टैंड, पोनी मीन्स स्टैंड होते हैं PONY, खच्चर या हॉर्स कई टाइप का होता है एक, ओके। तो जो वो अपनी पोनी के एक, उसने मैन को देखा, नरेटर है जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स है, वो जब अपने मालिक के साथ जा रहा था राइडिंग करके, ओके, राइडिंग से जा रहा था, ओके। तो उसने देखा कि एक मैन था, वो अपनी पोनीस के हेड को, इट्स मीन पोनीस हेड को, इट्स मीन अपने खच्चर के, अपने हॉर्स के सिर को बहुत ही मतलब फोर्सफुली उसे विथ सच अ ग्रेट फोर्स, इट्स मीन बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही बलपूर्वक क्या कर रहा था, उसके हेड को टर्न कर रहा था, मोड़ रहा था, ओके, मोड़ रहा था उसे, ओके। दैट इट नियरली फेल, और वह लगभग गिर ही गया था। देन इज स्टार्टेड बीटिंग इट, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको बीट करने स्टार्ट कर दिया, उसे पिटाई करना उसकी स्टार्ट कर दी, उस पोनी की, उस हॉर्स की, एंड फॉरिशली विच विथ सॉरी इट फ्यूरियसली, विच वॉज अ ड्रीडफुल साइट फॉर दी नरेटर। और ये जो साइट था ना, ये जो दृश्य था ना, ये उस नरेटर के लिए, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के लिए बहुत ही ड्रीडफुल था। फ्यूरियसली स्टैंड हियर द मीन ऑफ दैट, कि ये सच में, ये जो नरेटर के लिए ये जो साइट था, बहुत ही ज़्यादा
रीडफुल था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ओके, तो वंस व्हेन द नरेटर वाज राइडिंग विद इट्स मास्टर इट saw a man turning upon his head with such a great force that it nearly fell. Then he started beating it furiously, which was a dreadful sight for the narrator. Okay, तो एक बार जब ब्लैक ब्यूटी हॉर्स, जो नरेटर है हमारी स्टोरी के, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स अपनी माली के साथ राइडिंग करते हुए जा रहा था। ओके, और तो उसने देखा कि एक मैन अपने पोनी के हेड को, अपने खच्चर या घोड़े के हेड को बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही बलपूर्वक से मोड़ रहा होता है। और इसने ऐसे टर्न किया, ऐसे मतलब उसके हेड को टर्न किया, इतना फोर्स लगाया कि वो लगभग सा गिर ही गया था वो बेचारा पोनी। ओके, और उसके बाद वो मैन ने क्या किया, बहुत ही क्रूल मैन था, निर्दयी मैन था, उसने क्या किया, उसके बाद उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। ओके, और जब उसने पीटना स्टार्ट कर दिया, तो जब ये साइट, ये ड्रेस है, जब नरेटर ने देखा ना, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ने देखा, तो उसके लिए ये साइट बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल था, बहुत ही डरावना था। ओके, तो वही सोच रहा था कि कैसे मेरे मास्टर मिस्ट्रेस तो इतने अच्छे हैं और ये मैन कैसे बिहेव कर रहा है अपनी पोनी के साथ, है ना। तो स्टैंड टर्न योर पेज एंड लुक एट द next question. Your next question is, the master says to Mr. Saver, by such anger you injure your own character more than you injure your horse. What does this mean? Okay, the master मिस मालिक सेज मिस कहती है मिस्टर सैवर, जो स्टूडेंट, जो मैन के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है ना, इस क्वेश्चन नंबर 3 में रीड किया कि एक मैन था, वो अपनी पोनी के हेड को बहुत ही फोर्सफुली मतलब टर्न कर रहा था, बहुत ही हर्ट कर रहा था उस पोन को। ओके, उस पोनी को बहुत ही हर्ट कर रहा था, और उसने पोनी को इतना ज़्यादा फोर्स किया, इतना ज़्यादा बलपूर्वक उसे उसके हेड को टर्न किया कि वो लगभग सा, वो बेचारा पोनी, वो हॉर्स गिर ही गया था, है ना, और उसकी पिटाई भी कर रहा था ना। तो उसी मैन का नेम है सैवर। ओके, तो दी मास्टर मीन्स मालिक, सेज मीन्स कहता है मिस्टर सैवर, टू मिस्टर सैवर, इट्स मीन मिस्टर सैवर से, जो मैन था ना, जो बहुत ही बैड बिहेव कर रहा था पोनी के साथ, हॉर्स के साथ, तो उसका नाम था मिस्टर सैवर, बहुत ही पावरफुल मैन था। तो दी मास्टर सेज टू मिस्टर सैवर, इट्स मीन मालिक मिस्टर सैवर से कहते हैं, बाई सच एंगर यू इंज्योर योर ऑन कैरेक्टर मोर देन यू इंज्योर योर हॉर्स। इट्स मीन कि तुम अपने एंगर के द्वारा, ओके, अपने गुस्से के द्वारा, इंज्योर मीन्स स्ट्रेंथ होता है, या द मीन ऑफ इंज्योर दैट बोल सकते हैं कि घायल करना, चोटग्रस्त करना। ओके, तो अपने गुस्से के द्वारा इस घोड़े से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को चोट पहुंचा रहे हो, उसे घायल कर रहे हो। ओके, तुम इस घोड़े को तो, इस पोनी को, इस हॉर्स को तो तुम मतलब घायल कर रहे हो, उसे चोटग्रस्त कर रहे हो, बट उससे कई ज़्यादा ना, तो अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को चोटग्रस्त कर रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो, उसे घायल कर रहे हो। ओके, what does this mean? इसका क्या मतलब है? ओके, so send your four number answer is, this means that he is damaging his own character not only in front of his horse by treating him brutally, but also in front of other people too. Okay, this means, yeah, means अर्थ है, that means कि, he means वह। okay, here the use of he, that मिस्टर सावर के लिए यूज़ किया गया ही। okay, सावर जो मिस्टर है, इट मीन्स है, डैमेजिंग मीन्स डिस्ट्रेंट होता है, नष्ट करना, बर्बाद करना या हानि पहुंचाना बोल सकते हैं। इस मीन्स अपने ऑन मीन्स स्वयं के कैरेक्टर मीन्स चरित्र को, नॉट ओनली मीन्स केवल नहीं, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, हिज मीन्स अपने, हॉर्स मीन्स घोड़े के, बाई ट्रीटिंग मीन्स व्यवहार के द्वारा, हिम मीन्स उसके, ब्रूटली मीन्स होता है बैड बिहेवियर। ओके, बुरे व्यवहार। ओके, बट मीन्स लेकिन, आल्सो मीन्स भी, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, अदर मीन्स दूसरे, पीपल टू मीन्स दूसरे पीपल, दूसरे लोगों के साथ भी। ओके, दूसरे लोगों के सामने भी। ओके, इन फ्रंट है, तो दिस मीन्स दैट ही इज़ डैमेजिंग हिज आउन कैरेक्टर not only in front of his horse but treating him brutally, but also in front of other people too. It's mean कि ये जो लाइन थी ना कि by such anger you injure your own character more than you injure your horse, it's mean कि तुम अपने घोड़े से ज़्यादा, घोड़े से कैसे कई ज़्यादा अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को चोट पहुंचा रहे हो, उसे घायल कर रहे हो। तो इसका मीन स्टैंड ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो मिस्टर सैवर है ना, जो क्रूल मैन है, अपनी गॉड से ज़्यादा बहुत ही बैड बिहेव कर रहे हैं ना, तो ये डैमेजिंग कर रहा है अपने कैरेक्टर को डैमेज कर रहा है, उसे हानि पहुंचा रहा है। ओके, सिर्फ अपने हॉर्स के सामने नहीं, सिर्फ अपने घोड़े के सामने ही नहीं अपने कैरेक्टर को डैमेज कर रहा है, अपने चरित्र को हानि पहुंचा रहा है, बल्कि मतलब अपने सिर्फ घोड़े के सामने ही नहीं कि मतलब उसे पीट रहा है तो सिर्फ उसी के सामने मतलब अपने कैरेक्टर को डैमेज कर रहा है। तो ये जो पर्सन है ना मिस्टर सैवर, और इस लाइन का मीन है कि जो मिस्टर सैवर हैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को सिर्फ घोड़े के सामने ही डैमेज नहीं कर रहे उसके साथ बैड बिहेव करके, बल्कि सभी लोगों के सामने, उससे कई ज़्यादा सभी लोगों के सामने इसे मतलब अपने कैरेक्टर को डैमेज कर रहे, अपने चरित्र को हानि पहुंचा रहे, अपने चरित्र को मतलब डैमेज कर रहे, उससे हानि पहुंचा रहे, उससे बर्बाद कर रहे। ओके,
तो ये जो मिस्टर सेवर हैं, क्योंकि घोड़े के साथ बहुत बैड बिहेव कर रहे होते, तो मास्टर जो होते हैं ना, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के मास्टर है, वो इसे कन्विंस कर रहे होते, इसे समझा रहे होते कि आप जो इसे हर्ट कर रहे हो ना, इस घोड़े को, इसे इस पर चैकरिंग्स लगा रखी हो, इसे हर्ट कर रहे हो, ओके। तो इस घोड़े को इंज्योर करने से कई ज़्यादा, इस घोड़े को घायल करने से कई ज़्यादा आप अपने कैरेक्टर को इंज्योर कर रहे हो, अपने चरित्र को घायल कर रहे हो, ओके। और इस लाइन का मीन ये है स्टूडेंट कि दिस मीन्स दैट ही इज़ डैमेजिंग हिज ओन कैरेक्टर नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ हिज हॉर्स बाई ट्रीटिंग हिम ब्रूटली बट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल टू, ओके। तो इसका अर्थ है कि वह अपने चरित्र को सिर्फ घोड़े के सामने, घोड़े के साथ बुरा व्यवहार करके घोड़े के सामने ही नहीं हानि पहुंचा रहा था, बल्कि सभी लोगों के सामने भी अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को हानि पहुंचा रहा था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कैरेक्टर होता है ना, वो हमारे बिहेवियर से ही उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर हम गुड बिहेवियर करते हैं तो हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है, अगर हम बैड बिहेवियर किसी के साथ करते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी वैसा ही हो जाता है, बैड, ओके। और हम अपने कैरेक्टर को डैमेज कर सकते हैं। तो हमेशा हमें गुड बिहेवियर करना चाहिए टू एवरीथिंग, एवरी वन एंड एवरी एनिमल्स, ओके। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जानवरों के साथ अच्छा बिहेव ही करना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बी एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज बी. You have no problem in this exercise B, okay, because I have explained you all answers of this question, of this exercise B of this chapter 3 Black Beauty, okay. मैं ऐसा करती हूँ आपको एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी, आपको किसी भी आंसर में, किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ वी आर गोइंग टू मैच होमवर्क, ओके, विच आई गैव यू स्टडी, ओके. जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना एक्सरसाइज ये कंप्लीट करने की, तो वो मैच कराने जा रही, ओके. सो ऑल स्टूडेंट्स पे स्पेशल टेस्ट इन योर क्लास, लुक एट दिस एक्सरसाइज ए. स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज ए बिलोंग्स टू योर चैप्टर 2 Ben Frankenstein was just a kid, okay. So let's see, look at the pictures of the vegetables and match them with their description, okay. तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द वेजिटेबल्स, इट्स मीन सब्जियों की तस्वीरों को देखिए, एंड मैच देम, और उन्हें मिलाइए विद दियर डिस्क्राइबेशन, उनके डिस्क्राइबेशन से, उनके बारे में जो वर्णन किया गया ना, उनसे मैच करिए. क्लियर? वो फर्स्ट नंबर वेजिटेबल इज कैलेरी, ओके. कैलेरी है CELERY. तो स्टूडेंट्स, मैच द कैलेरी टू मैच फर्स्ट कैलेरी टू C डिस्क्राइबेशन अ वेजिटेबल विथ लॉन्ग पेल ग्रीन स्टीम्स, ओके. ए वेजिटेबल एक सब्जी, विथ मीन्स साथ में, लॉन्ग मीन्स लंबी, ओके. पेल मीन्स स्टूडेंट होता है येलो, ओके. एंड ग्रीन मीन्स हरा, स्टीम्स मीन्स तना. अ वेजिटेबल विथ लॉन्ग पेल ग्रीन स्टीम्स, इट्स मीन एक सब्जी लंबी पीली हरी तनों के साथ, उसे बोलते हैं कैलेरी, ओके. CELERY. एंड स्टूडेंट, ये हिंदी मीन ऑफ कैलेरी इज दैट अजवाइन होता है, ओके. तो स्टूडेंट, मैच फर्स्ट कैलेरी टू C नंबर डिस्क्राइबेशन अ वेजिटेबल विथ लॉन्ग पेल ग्रीन स्टीम्स, ओके. लुक एट द सेकेंड नंबर वेजिटेबल पिक्चर. योर सेकेंड नंबर वेजिटेबल पिक्चर, इट्स अ asparagus, okay. तो स्टूडेंट्स, the correct description of this second number asparagus, it's a long thin green vegetable with a point at one end, okay. एक लंबी पतली हरी सब्जी जिसका जो एंड होता है वो एक पॉइंट पे होता है, एक बिंदु पे होता है, उसे बोलते हैं एस्परागस, ओके. तो स्टूडेंट्स, हियर द मीन ऑफ एस्परागस दैट एक प्रकार का शाग होता है. क्लियर? तो स्टूडेंट, मैच सेकंड एस्परागस टू D डिस्क्राइबेशन अ लॉन्ग थिन ग्रीन वेजिटेबल विद अ पॉइंट एट वन एंड. क्लियर? योर थर्ड नंबर वेजिटेबल पिक्चर इज लीमा बीन्स. लीमा बीन्स इस मीन्स स्टूडेंट होता है लीमा सीम, ओके. तो स्टूडेंट, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन विच वी कैन मैच 2-3 number lima beans is a round flat light green beans that grows steams, okay. एक गोल समतल हल्का हरा सेम that grows steam, okay, जो स्टीम्स में होता है, okay, जो तनिक रूप में होता है, उसे बोलते हैं लीमा बीन्स, okay, लीमा सेम, okay. So stand match your 3 number lima beans to be around flat light green beans that grows stems, okay. So your 4 number vegetable picture is sprouts, okay. So stand the correct description which we match to sprouts is small green vegetable, it's mean छोटी हरी सब्जी, ओके. सो स्टूडेंट्स, मैच योर 4 स्प्राउट्स टू E नंबर डिस्क्रिप्शन स्मॉल ग्रीन वेजिटेबल. क्लियर? योर 5 नंबर वेजिटेबल पिक्चर इज केले, KALE, केले. एंड द मीन ऑफ केले इज दैट गोभी बोलते हैं इन हिंदी, ओके. तो स्टूडेंट, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर केले इज अ डार्क ग्रीन वेजिटेबल विथ क्रूड लीव्स, ओके. एक गहरी हरी सब्जी घूमी हुई
पत्तियों के साथ. ओके, क्यूल्ड मीन्स होता है CURLD, क्यूल्ड मीन्स होता है घूमी हुई. ओके, तो एक गहरी हरी सब्जी घूमी हुई पत्तियों के साथ. वी कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स अ केले. ओके, तो स्टूडेंट्स वी कैन सी कि जितने भी वेजिटेबल्स है वो लाइट ग्रीन है, बट ये जो केले है ना वो बहुत ही डार्क ग्रीन है ना. और वी कैन आल्सो सी दैट इसके जो लीव्स है ना वो क्यूल्ड है, इट्स मीन घूमी हुई है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैच 5 केले टू A number, a dark green vegetable with cute leaves. Okay, तो student I describe you all vegetables description. Okay, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. So students, match your this exercise which I gave you in homework yesterday. Okay, एंड स्टूडेंट्स अगर आपका वर्क सही है तो वेरी गुड. एंड अगर आपका कोई भी इसमें कोई भी अगर आपने रॉन्ग मैच किया तो उसे करेक्ट कर लीजिए. ओके, so students, today's our topic has finished and I hope you must have understood what topic exercise we answered this question of chapter 3 Black Beauty and exercise of chapter 2 when Frankenstein was just a kid. Clear? सो मैं यही आशा करती हूँ कि आपको दोनों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी. ओके, तो स्टूडेंट टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन एक्सरसाइज बी आंसर दिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी इन योर फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. And after it, match your exercise A of chapter 2 when Frankenstein was just a kid from your English literature book as we said. It's a 2 days class work. And student, your homework is that learn exercise B, answer these questions of chapter 3 Black Beauty from your Fire English literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो स्टार्ट आपका क्लास वर्क क्या, आपको फर्स्ट सबसे पहले ना एक्सरसाइज बी एज इट इज़ नोट डाउन करनी है अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक है. फर्स्टली मेंशन CW एंड आफ्टर डेट एंड आफ्टर चैप्टर नंबर एंड देन चैप्टर नेम and then mention heading exercise B, answer this question, and last start to write down these question answer in your फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. ओके, तो एज इट इज़ आपको नोट डाउन करनी है अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो आपको कल होमवर्क में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी थी ना, अपने होमवर्क को मैच करिएगा. ओके, मैच करिएगा कि आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं किया. अगर रॉन्ग कहीं हो गया है, ओके, रॉन्ग मैच है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा. ओके, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा. तो आपका क्लास वर्क क्लियर हो गया. एक्सरसाइज बी कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज से मैच करनी है. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये कि आपको एक्सरसाइज बी के जो 4 क्वेश्चन है, ओनली आई गिव यू ओनली 4 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. ओके, सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन दे रही हूँ इस एक्सरसाइज के. तो आपको ये क्वेश्चन से लर्न करनी है फ्रॉम योर फायर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. इट्स अ 2 days होमवर्क. आज आपका होमवर्क है. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी इन योर फायर इंग्लिश लिटरेचर notebook, and after it match your answer of this exercise A from this given answer sheet and complete it in your English literature book. Okay, so all listen, complete your work and send me your work here. Thank you.